हाँ जी, today we are going to discuss a chapter motion of class 9th. In this chapter, we are going to learn what is motion, when we can say a body is in motion, and when we say a body is in rest, what is distance, what is displacement, what are the difference between these two quantities, distance and displacement, is what is speed, what is velocity, what is acceleration, time, velocity graph, and so many different things we are going to learn in this chapter. Before we start what is motion, we learn what is mechanics. Mechanics is a branch of physics that seeks to understand and explain motion of material object, including the condition under which the body remain at rest. Means what? मैकेनिक्स एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जो हमें ये समझाती है कि कोई बॉडी मोशन में कब होगी और रेस्ट में होगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी. मैकेनिक्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स. डायनेमिक नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन अ थिंग इज चेंजिंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट मींस वो डायनेमिक है. तो इन दिस स्टेडी ऑफ बॉडी इज इन मोशन. इन स्टैटिक, स्टैटिक मींस कांस्टेंट, रुका हुआ. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्टेडी ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कोई चीज रुकी हुई है, ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू, object is not changing its position with respect to time. That will be covered in statics. Now dynamics is again divided into two parts, kinematics and kinetics. In kinematics you will learn about motion without considering the cause of motion. Without considering the cause of motion means in this you need not to worry about the cause of motion. means motion क्यों हुआ है, it doesn't matter. मोशन होने के बाद क्या चेंज हुआ है, क्या मोमेंटम में चेंज हुआ है या क्या डायरेक्शन में चेंज हुआ है, दैट्स मैटर. कॉज ऑफ मोशन विल बी लर्न इन काइनेटिक्स. ओके, क्यों हुआ है मोशन, तो वो हम किस में पढ़ेंगे? काइनेटिक्स में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन. एज यू कैन सी देयर आर 3 एक्सिस, x, y and z. These are called the coordinate systems, x, y and z. Okay, first we talk about motion in a 1 dimension or motion in 1D. When a body is moving in one axis only, or the body is changing its position in one direction only, then it is called as one dimensional motion. All straight line motions are one dimensional motion. Suppose a train is moving on a track, then it will be come in this category. A body is free falling, then it will be counted in one dimensional motion. What is two dimensional motion? Suppose a body is moving in a plane. Okay, it means body is changing its position with respect to two axes. So two dimensional motion is what? If out of the 3 axes x, y and z, if 2 axes specify the position of an object changes with respect to time, then it will be counted in 2 dimensional motions. Okay, for example you are playing a carom board. आप अगर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो जो आपने जिस भी क्वीन को मारा तो वो क्या होगा? 2D में है. सपोज अ व्हीकल इज मूविंग इन अ जिगजैग पाथ ऑन अ रोड. कोई गाड़ी है जो ऐसे जिगजैग मूव हो रही है ऑन अ रोड, तो वो भी क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल मोशन. 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशंस क्या हो जाएंगे? स्पेस की बात होगी. अगर कोई काइट हवा में उड़ रही है, कोई बर्ड उड़ रहा है, तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? 3D में. बिकॉज ऑल द 3 coordinates, all the 3 axes x, y and z are required for specifying the position of object with respect to time. तो व्हेन ऑल द 3 x, y and z तीनों के तीनों की जरूरत हो रही है किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो किस में आ जाएगा? 3D में. जब एक एक्सिस की जरूरत है तो 1D, 2 एक्सिस की जरूरत है 2D, और जब आपको तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट है तो वो किस में आ जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन. 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स अपन बोल सकते हैं कि अगर कोई काइट हवा में उड़ रही है, काइट इज फ्लाइंग इन स्काई, bird is flying
इन अ स्काई, तो वो 3D के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. इन योर नाइन्थ क्लास ओनली मोशन इन वन डायमेंशन, ओनली मोशन इन वन डायमेंशन यू हैव टू लर्न. नाइन्थ क्लास में केवल हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन के ही बारे में हमें डिस्कस करना है. सो वी स्टार्ट मोशन इन 1D. ओके, ये देखिए, I have written on the board definition of motion in a 1D. Motion in 1D is also called linear motion or rectilinear motion. As I told you, if only one of the three coordinates specifying the position of object changes with respect to time. One of the three coordinates means what? Suppose we have three coordinates x, y and z. X, y and z. As you can see in this diagram, the body is moving from P1 to P2. कोई बॉडी है जो P1 से P2 पे मूव हुई है, तो दोनों जो बॉडी का मूवमेंट हुआ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही हुआ है. ओनली वन coordinate is changing. Okay, so if only one of the three coordinates specify the position of an object, then it is called 1D. Example, motion in a straight line. Suppose a motion of train along straight railway track. Okay, this is also an example of 1D motion. An object falling freely under the gravity. Body is freely falling means what? No other force is acting on a body except gravitational force. Then the body is said to be free falling body. Motion in 2D. If two of the three coordinates specify the position of an object. Suppose यहाँ पे मैं पॉइंट P करके लिख देता हूँ x 2,3. Okay, so two coordinates I have mentioned here, 2,3. 2 is what? X axis. 2 represent x and 3 represent y. It means the position of an object is specified by two coordinates out of the three. तीन में से मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए. then it will be counted as a 2D motion. Okay, if two of the three coordinates specify the position of object changes with respect to time, then the motion of object is called 2D motion. I have given you example, motion of queen on carom board. Okay, now a car is moving along zigzag path. Okay, अगर वो सीधी जाएगी तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है? जिगजैग पाथ. जिगजैग पाथ का मतलब है वो दो एक्सिस की बात हो रही है, यहाँ पे दो एक्सिस साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है, इसीलिए हमने इसको कह दिया मोशन इन अ 2D. नाउ मोशन इन अ 3D. as I told you, if all the three coordinates specify the position of an object changes with respect to time, then the motion of object is called 3D motion. Suppose we have three axes x, y and z, and suppose I have point in space, है ना, कोई point space में, suppose this point P, and I require x, y and z. I required all the three axes x, y and z to specify the position of this point P. Then it will be counted in a motion in a 3D. Examples: a bird flying in the sky, a random motion of gas molecules, motion of aeroplane in a space. All the examples are of 3D motion. Now we learn types of motion. Types of motion. All the possible motions that are taking place in the universe, जितने भी जो possible motions हैं, all that motions are divided into three categories. Translation motion, vibrational motion, and third category is rotational motion.
Translation motion means what? Suppose a train is moving on a rail track, so it is translation motion. Vibrational motion means to and fro motion. To and fro motion of पेंडुलम. आप देख सकते हैं क्लॉक में जो पेंडुलम होता है वो एक मीन पॉइंट के आगे और मीन पॉइंट के पीछे ऐसे ऐसे मूव करता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वाइब्रेशनल मोशन की कैटेगरी में आएगा. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम. रोटेशनल मोशन मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल योर फैन इज मूविंग. अगर फैन की जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट हो रही हैं, तो रोटेटिंग blades of fan. Rotating blades of a fan or electric motor shows rotational motion, or you can write electric motor. Okay, so basically types of motions are translation motion, are vibrational motion and rotational motion. Okay, now to define motion, अगर आपको मोशन को डिफाइन करना है या मोशन को बताना है तो यू नीड टू डिफाइन द रेफरेंस पॉइंट. ओके, एक रेफरेंस पॉइंट बताना हमें जरूरी होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए या उस पॉइंट की मोशन को बताने के लिए. वी रिक्वायर्ड अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट. So we need a reference point. We need a reference point to define the position of a body. सपोज ये जैसा अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, एक एक्स वाई और जेड. द पॉइंट वेयर थ्री एक्सिस मीट्स, ये जहां पे तीनों एक्सिस आके मिली है, इसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट कहेंगे. और इस रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सपोज मार्क इट एज ओरिजिन ओ, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इट विल बी 0,0,0. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 0,0,0. Okay, before I start what is motion, okay, I would like to give introduction of scalar and vector quantities, because scalar and vector quantities are going to be used in next topics. So it is better to understand first what is scalar and vector quantity, then we start motion. Okay. So a physical quantity can be divided into three categories. Number one is scalar, number one is vector, number two is vector, and number three is tensor. Okay, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर, वेक्टर और टेंसर में डिवाइड कर सकते हैं. और एज यू नो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली टू डिफाइन इट. यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसको आपको समझाने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. ओनली मैग्नीट्यूड, नो नीड टू डिफाइन डायरेक्शन. ओके, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट भी होगी, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, टाइम, मास, these are the examples of scalar quantities. In vector, magnitude plus direction
प्लस वेक्टर्स लॉ। ओके, 9th क्लास में आपको वेक्टर्स डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, वो 11th क्लास में है। मैंने एक सेपरेट वीडियो वेक्टर्स पे बनाकर क्लास 12th वाले प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज इन 9th क्लास ज़्यादा आपको डिटेल में वेक्टर नहीं पढ़ना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है, जो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है। वेक्टर लॉ का मतलब आप अभी फॉर 9th क्लास में आप इतना सा ध्यान रखें कि वेक्टर लॉ का मतलब है जब दो क्वांटिटीज़ को ऐड करना हो तो आप उनको सीधा एल्जेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते। देयर आर सम लॉज इन विच एंगल इज ऑल्सो मैटर, कि दो, अगर मान लीजिए दो फोर्स लग रहे हैं तो इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको एंगल कितना उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और फिर एक यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। 9th क्लास में तो इतना रिक्वायर्ड नहीं रहेगा इस चीज का। एग्जाम्पल, displacement, velocity, speed is an example of scalar quantity. Velocity, acceleration. One more quantity, tensor. It has magnitude, it has direction, but ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। करंट इज एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल आप ध्यान रखिए, करंट इज एन एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटी। 9th क्लास में इतना डिटेल में आपको नहीं बताएगा कोई भी, आपको अभी केवल थोड़ा सा बाइफर्केशन आना चाहिए कि सर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, क्योंकि हमें अगला ही टॉपिक पढ़ना है डिस्टेंस और उसका अगला डिस्प्लेसमेंट, तो मैं वहाँ पे लिखवाऊंगा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपके सीधा ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इट मीन्स डिस्टेंस को जब भी हम बताएंगे हमें डायरेक्शन की बताने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट, जैसे 10 किलोमीटर बोला तो 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड किलोमीटर इज द यूनिट। वी डिडंट डिस्क्राइब द direction, but when we say about displacement, so we have to add direction also, 10 kilometer in north. Okay, we will discuss later on distance and displacement. Okay, so broadly physical quantity can be of scalar, can be of tensor, and can be of vector. Okay, now I am going to start motion. What is motion? What is motion? देखिए मोशन क्या होता है सर, अगर हम ये कहें कि मोशन मीन्स इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर कोई बॉडी, जैसे ये मार्कर अभी यहाँ है, अभी 1 मिनट बाद या 1 सेकंड बाद ये यहीं पे रहा, तो आपके लिए ये क्या होगा? आपके और मेरे लिए रेस्ट में है ना? क्यों? क्योंकि इसने अपनी पोजीशन नहीं बदली। लेकिन देखिए पूरी डेफिनेशन क्या होती है, मोशन कब कहेंगे हम? when a body is changing its position with respect to and with respect to observer। देखिए डेफिनेशन क्या हुई, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा तभी वो बॉडी मोशन में कहलाएगा। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम, अगर मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड ट्रेन में कहीं जा रहे हैं एंड ट्रेन इज मूविंग ऑल्सो, और जो प्लेटफॉर्म पे आपका फ्रेंड जो आपको ड्रॉप करना आया है, जब ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो यू एंड योर फ्रेंड, आप और आपका दोस्त जो ट्रेन में पास पास बैठे हैं, तो आप लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बट द पर्सन हु इज
outside and standing on a platform, for that person you both will be in motion, because you are changing your position with respect to time and with respect to observer. Okay, यानी observer decides that a body is in motion or is in rest. क्यों ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इस मार्कर को पकड़ के ऐसे खड़ा हूँ और बाहर से कोई भी पर्सन बाइक पे यहाँ से पास आउट हो, तो उसको क्या लगेगा, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन उसको क्या लगेगा. तो इट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर. मेरे लिए ये मार्कर क्या है, रेस्ट में, लेकिन किसी और के लिए यही मार्कर क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है. इसीलिए हम यहाँ पे इस वर्ड को ऐड करते हैं ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर इज गोइंग टू डिसाइड दैट अ बॉडी इज इन रेस्ट और इज इन मोशन. क्लियर हो गई आपको. एग्जाम्पल भी, यू हैव टू मेंशन वन एग्जाम्पल. तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया. और आप समझ सकते हैं, बस में आप और आपके फ्रेंड जा रहे हैं, तो जो रोड साइड पे खड़ा है ना, उसके लिए आप क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे आप दोनों अलोंग विद द बस. लेकिन आप जो पास पास बैठे हैं सीट पे, आप दोनों क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे. क्यों? क्योंकि आपने एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो पोजीशन चेंज नहीं करी है. तो हम रेस्ट की डेफिनेशन भी यहीं से बनाएंगे. ये तो होगी मोशन की डेफिनेशन. रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन a body does not change its position with respect to time and with respect to observer. Okay, it means what, अगर कोई बॉडी किसी एक पर्सन के लिए रेस्ट में है, तो हो सकता है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए मोशन में हो. इसीलिए हम कहते हैं नथिंग इज इन परफेक्ट रेस्ट और इज इन परफेक्ट मोशन. नथिंग इज इन परफेक्ट रेस्ट और इज इन परफेक्ट मोशन. Observer is going to decide whether a body is in rest or is in motion. ठीक है. तो ऑब्जर्वर ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है. तो आई होप यहां तक आज आपको क्लियर हुआ होगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. और आप कमेंट भी लिख सकते हैं. मैं आपको कमेंट के आंसर्स भी ज़रूर दूंगा. थैंक यू.